डू यू नो अबाउट द राइट टू इक्वलिटी? क्या आपको समानता का अधिकार के बारे में पता है? यदि नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है। आई एम दीपक प्रकाश, वेलकम टू लेक्चर 7 ऑफ वाद, प्रतिवाद एंड संवाद सीरीज। So today we are going to discuss about right to equality as enshrined under Article 14. So if you remember correctly, in lecture 6 we talk about amendability of the fundamental rights, which is one of the most important topic of UPSC, and at the same time we also talked about Edwin Murchan quote which you can use in ethics. Today in this lecture, I am going to discuss about right to equality and two of its important components. One is equality before the law and equal protection of the law. Another important discussion would be on rule of law, and towards the end I will end it with T.S. Eliot's line from the Hollow Man. So if you remember correctly, Article 14 confers twofold right on individual. The first is right to equality before the law and second is equal protection of the law. अगर आप बेयर एक्ट देखेंगे, बेयर एक्ट, the Constitution of India, so Article 14 says equality before law. The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India. So it is explicitly mentioned in Article 14 of the Indian Constitution. Equality before the law and equal protection of the law. So coming to our first concept, what is equality before the law? तो अच्छे से इसको समझना है बिकॉज यूपीएससी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एज अ लीगल कॉन्सेप्ट इट ओरिजिनेटेड अंडर द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन. इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में इसका ओरिजिनेशन हुआ. सेकेंड, इट इज़ अ निगेटिव कॉन्सेप्ट. अभी ये दिमाग में आना चाहिए कि ये निगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों है. इक्वलिटी बिफोर द लॉ, व्हाई इट इज अ निगेटिव कॉन्सेप्ट? बिकॉज इट इसेंशियली मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन. चाहे आप राजा हो या रंक हो, आपके लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है. नो मैन इज रिगार्डेड एज अबव द लॉ. इफ यू वुड कमिट क्राइम, अगर आपने कोई भी गलती की है, कमिट क्राइम किया है, सो चाहे आप राजा हो या रंक हो, यू शैल बी ट्रीटेड एज इक्वल एंड यू वुड बी सब्जेक्टेड टू सेम लॉ इन एन सेम ऑर्डिनरी लीगल मैनर. दैट्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ. सो इक्वलिटी बिफोर द लॉ guarantees juridic equality. Juridic equality, that is equality in the eye of law. In the eye of law, everyone is equal. हर कोई बराबर है. अब इसी से एक एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट जो है वो है रूल ऑफ लॉ का. रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी. एज अ कॉन्सेप्ट अगेन इट ओरिजिनेटेड इन द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन. इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ कॉन्सेप्ट इट ओरिजिनेटेड एंड इट इज एक्सप्लेन्ड बाय A.V. Dicey, the great constitutional commentator, British constitutional commentator. After the rule of law, let me tell you, it means lex supremus, that is law is supreme. ऐसे आर्टिकल 14 अभी मैंने बेयर एक्ट से आपको पढ़कर सुनाया, उसमें रूल ऑफ लॉ कहीं मेंशन नहीं है, बट इट इज इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल 14. So before the institution of rule of law, the rule of law, the situation, prevailing situation was rex lex, that is king is law. But after institution of rule of law, it becomes lex res, lex rex, law is king. So law becomes supreme. The law is not subjected to the whims of government, rather government is subjected to the law. So A.V. Dicey has given three important principles of rule of law. First principle says no person shall be punished except shall be punished or made to suffer in body or good except for the violation of law. जब तक आप कोई लॉ को वायलेट नहीं करते हैं, you shall not be punished, and that punishment shall be established, that violation shall be established in a ordinary legal court, ordinary law. That's the one thing. Second is
all person subject to the ordinary law of the land without distinction of rank or position are subject to the jurisdiction of the ordinary court of the country. आप चाहे किसी रैंक पे रहें, चाहे कोई भी पोजीशन पे रहें, अगर आप गलती करेंगे तो ऑर्डिनरी कोर्ट में आपको ट्राई किया जाएगा. दैट्स द सेकेंड प्रिंसिपल. एंड थर्ड प्रिंसिपल स्टैंड्स मॉडिफाइड फॉर इंडिया. उन्होंने बोला था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सब लोग मिलकर आए और दे क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. सो कोई और लॉ को अगर वाइड नहीं होना है, वैलिड रहना है, सो they have to conform to the principles of Indian Constitution. ठीक है? That's the second important component, third important component of rule of law. Then next is one more important thing. Today, rule of law is considered as a necessary feature for the functioning of democracy. Democracy के function के लिए rule of law has been considered as an essential feature. इसके बिना it cannot at all function, and that is why Supreme Court and High Court get jurisdiction under Article 32 and 226. However, there are certain exceptions. इसके कुछ exceptions भी हैं, like under Article 361, President and Governor is not answerable to a court of law in the exercise of their executive function. उनको court of law में आप नहीं पूछ सकते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, executive function. That's the one thing. Second, no criminal proceeding can be instituted or continued against president or governor. And third, no civil proceeding can be instituted against the governor or the president except a 2 months notice has been given to them. Then head of states, dignitaries, foreign dignitaries, diplomats, they also enjoy certain exceptions. So that is the list of exceptions. Now coming to the next important component of the Article 14, that is equal protection of the law. अभी equal protection of law जो political science के student होंगे उनको पता होगा कि it is a Aristotelian concept. कैसा concept है? एरिस्टोटल का जो theory of equality है वही exactly ये है, equal protection of the law. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि as a legal concept, जैसे इक्वलिटी बिफोर द लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में इमर्ज हुआ, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इमर्ज हुआ, अमेरिका से आया है. सो इट ओरिजिनेटेड इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. सो व्हाई पॉजिटिव कॉन्सेप्ट? क्योंकि इट अलाउज द स्टेट टू टेक अफर्मेटिव एक्शन इन फेवर ऑफ दोज हु आर बैकवर्ड. अभी क्यों? क्योंकि एरिस्टोटलियन जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली सेज दैट it is equally unjust to treat equals unequally. दो इक्वल हैं, दो लोग इक्वल हैं, अगर उनको अनइक्वल ढंग से ट्रीट किया जाएगा तो वो अनजस्ट होगा. बट इट इज़ इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली. दो अनइक्वल हैं और उनको एक तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, वो भी अनजस्ट है. सो बेसिकली इट सेज इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस. दैट इज वाई इट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. सो अगर इक्वल सर्कमस्टांसेस हैं दो लोगों का, देन दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली. सो इट एक्चुअली इंश्योर्स, इट आस्क द स्टेट टू इंश्योर दैट पीपल आर सिमिलरली प्लेस्ड while applying any law uniformly over them. अगर कोई भी लॉ यूनिफॉर्मली सब लोगों पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है कि लोग जो हैं वो सिमिलरली सिचुएटेड हैं. अगर नहीं है देन दैट लॉ शुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. सो यहाँ पे स्टेट क्या करता है, तो इट अलाउज अ स्टेट, इट इनेबल्स अ स्टेट टू सी इफ द पीपल आर properly placed or not. If people are not similarly placed, then it enables a state to take affirmative action. A state can make reasonable classification. A state जो है वो reasonable classification कर सकता है लोगों पे on the basis of different category. तब apply वहाँ law कर सकता है. अब जैसे affirmative action, reservation policy. So reservation policy given in favor of backward classes of citizens or say SC ST is constitutionally protected under equal protection of the law, because equal protection of the law says that all laws shall not apply uniformly to
everyone. Are you getting? So that's the one important thing. Similarly, removal of creamy layer from the OBC. अभी जो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है फ्रॉम ओबीसी, दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड अंडर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, बिकॉज ओबीसी एज अ कैटेगरी हैज बीन मेड टू एडवांस दोज हु आर बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ social and economic educational backwardness, so they are constitutionally protected. So removal of creamy layer from the OBC is a constitutional direction. That is another important component. This is done. Now coming to today's T.S. Eliot line from the Hollow Man. T.S. Eliot बोलते क्या हैं कि between the conception and the creation, between the emotion and response falls the shadow. अब इसका मतलब क्या है? ये हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ये जानने की ज़रूरत है. सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स फेस दिस इशू. आपने जब सपना देखा, यू ड्रीम टू बिकम एन IAS ऑफिसर, दैट इज़ द कंसेप्शन फेज. और जब वो ड्रीम पूरा हो जाएगा, दैट इज़ द क्रिएशन फेज. इस बीच में काफ़ी सारे निगेटिव इमोशंस आते हैं, काफ़ी सारे पेसिमिस्टिक फीलिंग्स आती है, बट दैट शुड नॉट डिटर यू. अपने एस्पिरेशंस को वहाँ पे मार नहीं डालना है, बिकॉज इट्स कॉमन फॉर एवरीवन. जब भी हम कोई सपना देखते हैं और सपना के पूरे होने के बीच में काफ़ी सारी निगेटिविटी आती है, वी हैव सेल्फ डाउट अबाउट आवर कैपेबिलिटी, बट ट्राई टू फाइट ओवर इट, ट्राई टू ओवरकम योर ओन सेल्फ डाउट. अपने सेल्फ डाउट से लड़ना है, कॉन्फिडेंस लाना है, एंड बिलीव मी, यू ऑल आर गोइंग टू वंडर्स. दुनिया का जो भी बड़े से बड़ा फिलोसफर बना है, बड़ा से बड़ा आदमी बना है, एवरी टाइम दे हैव फेस्ड दिस इशू ऑफ सेल्फ डाउट. उनको हमेशा से अपने ऊपर डाउट रहा है, बट स्टिल दे हैव रियलाइज्ड देयर ड्रीम एंड दे हैव डन देयर बेस्ट. इन नेक्स्ट लेक्चर वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट, अभी क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर प्रीलिम्स अब 8 महीने बाद है, सो वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रीलिम्स. अभी प्रीलिम्स को कैसे टैकल करना है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ द वीडियो. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. टेक केयर.